So good morning to all. My voice is audible to all of you. Akash, Aman, Mamta. Yes, sir. Okay. Good morning, Yes, sir. sir. Good morning, all of you. Last classes already we have discussed the different conditions for transient analysis for RC and the different input signals, also impulse, pulse, step input, RC circuit like that. All the things are already cleared in the last classes. Also, some numericals are also discussed. So today the numerical sessions, because you know that these are the very important topic, Laplace transformations, transient analysis, and also numericals are very important for your competitive examinations also, your university exam as well as competitive exams like a GATE or any PSU like that. So today we will solve some numerical problems. So all of you cooperate and solve, try to solve. So now I am giving the questions. So all of you just write down the question and try to solve. So okay, all of you. So write down the question. Now the question is here. A sinusoidal voltage 25 sine 10 t 10 10 t is applied at time t is equal to 0 to a circuit as shown in figure. Find the current IT by Laplace transform LT method R is equal to 5 ohm and L is equal to 1 Henry. So here, this is the circuit. This is R, this is L. Now this is the 25 sine 10t. The sinusoidal input is here given, is equal to 0. This is the R. Now this is the L. The values are given here. So I hope that all of you know, apply the KVL, taking the Laplace transform. So all things are already cleared. So try to solve this one. Parallelly, I am solving. So all of you just try to match your answers. So all of you write down the question first. Same types of questions are already discussed in the last classes. So first applying the Laplace KVL. Okay. You know na, simple. Try to solve. ममता कुमारी जल्दी जल्दी थोड़ा बनाओ, ठीक है? Yes, मैं भी sir. धीरे धीरे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैच करते हुए बनाते जाओ. Okay. Simple. This is the KVL. Just applying here.
नाउ द टेकिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सबको बनाना है, सबको। ये नहीं है कि क्योंकि मैं इतना दिन से लैपलेस पढ़ा रहा हूँ, ट्रांजिएंट पढ़ा रहा हूँ, इतना तो गेट का कोचिंग में भी नहीं पढ़ा होगा जितना मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। इस एक टॉपिक में इतना डिस्कशन है। ठीक है, यदि ठीक से पढ़ोगे ना तो कोई गेट का कोचिंग नहीं लेने की जरूरत है, इसी से हो जाएगा। टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, initial condition 0, so s simply s l I s 25, and you know ना that the sin theta क्या होता है पता है ना, sin 80 का a by s square plus a square, so 10 s square plus a square means 100। ये जिन ये दिस इज द लैपलेस विद जीरो जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक है, जीरो इनिशियल कंडीशन। अब पता ये क्या करना है, आईएस को निकालना है यहाँ से, है ना, आईएस को निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो सॉल्व करने का कोशिश करो, बन तो जाएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा। आईएस को कॉमन निकालते हैं, आर प्लस एस एल, टू 50 एस स्क्वायर प्लस 100। तो इसको जो है कि आर का वैल्यू दिया हुआ है ना 5 और एस एल का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस 5, so is is equal to 250, now this is what, s plus 5 s square plus 100। So I think all of you know how to solve this inverse Laplace transform, that is the taking the you know the partial fraction method, so all of you, I think all of you know that this one partial fraction method, तो partial fraction method से solve कर सकते हैं आसानी से इसको हम लोग, या फिर ये जो है ना एस स्क्वायर प्लस 100 को हम लोग जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 250, नाउ दिस इज s प्लस 5 और s प्लस j10 और s माइनस j10 लिख सकते हैं इसको ऐसा, एस स्क्वायर प्लस 100 को हम लोग s प्लस j10 माइनस s माइनस j10, ओके। और आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द पार्शियल फ्रैक्शन, हाउ टू सॉल्व दिस वन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शंस का यहाँ पर यूज करके वैल्यूज को निकालो, इनवर्स लैप्लेस लो और सॉल्व करो। मैं 2-3 मिनट समय देता हूँ, फिर पूछूंगा अभी, ठीक है। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो है डाउट को क्लियर कर सकते हो, ओके।
सो क्या कुछ हुआ, सॉल्व हुआ किसी का? किसी का सॉल्व हुआ नहीं हुआ क्या? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो आता है ना सबको सॉल्व करने के लिए। 250 S+5 मैंने बनाने के लिए दिया तो अभी कुछ स्टूडेंट गायब हो गया, देखो 7E S+5 S+J10 S-J10, इसको कर सकते हैं कि नहीं? A/S+5 + B/S+J10 + C/S-J10, ठीक है। एबीसी का क्या वैल्यू आया है ममता कुमारी? एबीसी का वैल्यू क्या आया है, बता सकती हो? एबीसी को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी? सर a equal to -2. ए इज इक्वल टू -2, ऐसा वैल्यू आएगा क्या इसमें? देखता हूं। यहाँ पर मैं यदि कॉमन ले रहा हूं तो यदि मैं एस इज इक्वल टू, सपोज दैट हमको निकालना क्या है, बारी बारी से तो पुट करना है बस, क्योंकि मैं यदि इसका एलसीएम ले रहा हूं तो S+J10, मैं बता ही देता हूँ, तुम लोग क्या कंफ्यूजन कर रहे हो। S+5 S+J10 S-J10, तो ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है? S+J10 S-J10 प्लस बी के साथ में क्या हो जा रहा है? S+5 S-J10 प्लस सी के साथ में क्या हो जा रहा है? S+5 और S-J10। तो हम लोग ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? S इज इक्वल टू 5 पुट कर दें। S इज इक्वल टू यदि हम लोग -5 पुट कर देंगे तो बी और सी 0 होगा कि नहीं होगा? तो इसी तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग निकालते हैं कि नहीं? ठीक है, यदि हम लोग S इज इक्वल टू -5 पुट कर देंगे तो A इज इक्वल टू नहीं निकलेगा क्या? तो A इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? A इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, यदि हम लोग क्या पुट कर दें? -5, S इज इक्वल टू क्या पुट कर दें? -5, तो तब नहीं बन रहा है क्या? देखो तो ट्राई करके, वो तो लग रहा बन जाएगा। S² + 100 S इज इक्वल टू 5, तो हो जा रहा है तुम्हारा 125, 1/125 आ रहा है, देखो। सर 250 भी तो है। हम्म, करो ना, आ तो जाएगा, नहीं आ रहा है क्या? सर 250 by 125. यस सर। 250/125 आ रहा है। यस सर। हाँ तो ठीक है, 250/125 ही होगा। तो एक काम, 250 को कॉमन का बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है, ये इतना ही होगा, 250/125। ठीक है, उसी प्रकार बी को निकालो, तो बी भी वही आएगा। बी को सॉल्व करो, तो मैच करो बी का वैल्यू को कितना आ रहा है। ठीक है, निकालो, तो बी का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दोनों मैच करो। 250/100 2 + J, सी का वैल्यू देखो इतना आएगा, 250 100 -2 + J। चेक करो इसको, चेक करो, आ जाएगा देखो। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, पता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन एबीसी निकालते कैसे है। बी निकालना है, ए और सी को 0 करेंगे। ठीक है, एक बार S इज इक्वल टू J10 पुट कर देंगे, एक बार S इज इक्वल टू -J10 पुट कर देंगे, तो निकल जाएगा बी और सी का वैल्यू। देखो यही बी और सी का वैल्यू आएगा, चेक कर लो। ठीक ना, जब ये आ जाएगा तो 250 तो ऐसे भी कॉमन है, 250 को बाहर कर देंगे। तो IS इज इक्वल टू 250 को बाहर कर दो। ठीक है, ये पहला हो गया S+5 प्लस बी, क्या वैल्यू था बी का? माइनस में है, -1/,
100 2 प्लस जे और क्या है s प्लस J10 ना, एक मिनट, 2 हाँ s प्लस J10, ठीक है, प्लस 1/100 माइनस 2 प्लस जे और क्या है s माइनस J10। देखो यहां तक है, सिंप्लीफाई किए हो यहां तक, इसका इनवर्स लेना होगा, टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आई टी इजिकल टू, देखो सॉल्व करके, ये तो 125 दो बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। s प्लस 5 का मतलब क्या होगा, 1/s प्लस 5 का मतलब e माइनस 5t, है ना, क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है ना, ओके। तो 250/100 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 5/2, तो माइनस 5/2, और इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर 2 प्लस जे ई माइनस एस प्लस J10 का वैल्यू क्या होगा, ई माइनस J10t, ठीक है। सॉल्व करो इसको, चलो इसको लैप्लास इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स और इसका इनवर्स निकाल के देखो क्या हो रहा है, ट्राई करो। देखो कहीं पर कुछ छूट रहा है, गड़बड़ हो रहा है तो बताना। नहीं हो रहा है क्या, किसी से बताओ, नहीं हो रहा तो बता देंगे। 1/2 प्लस जे, तो 2 माइनस जे, 2 माइनस जे, तो 2 माइनस जे ये हो जाएगा 4, उसका 5 हो जाएगा, 2 माइनस जे 5, मतलब 2 प्लस जे को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस जे बटा 5 लिख सकते हैं। s प्लस J10 का क्या हो जाएगा, e माइनस J10t, ठीक है, और माइनस हो गया, प्लस फिर ये 5/2 माइनस 2 प्लस जे है ना, माइनस 2 प्लस जे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस जे, तो -2 माइनस जे माइनस जे, फिर वही हो जाएगा यहाँ पर भी -2 माइनस जे, और ये भी नीचे में क्या हो जाएगा फिर 5, ठीक है, ई J10 और ये टी। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब सिंपल सिंप्लीफाई है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड भी पढ़ रहे हो। अमन कुमार क्लियर हुआ, ये सब जो टॉपिक में लिख रहा हूँ ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो ये सब लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करो पार्शियल फ्रैक्शन, और ये जो इनवर्स लैप्लास मैंने अभी जो ये लास्ट स्टेप किया हूँ, ये वाला समझ में किसको नहीं आया है, ये किसको समझ में नहीं आया है, पूछ सकते हो अभी भी, बोलो बोलो, अमन आकाश, किसको समझ में नहीं आया ये वाला, अंकिता, Yes, sir. क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तब ना आगे बढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं, यस नो, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करो इसको और थोड़ा सा, 2e माइनस 5t, 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -12, ठीक है, ये माइनस, अच्छा इसको तो पूरा हम लोग अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये 5 हाफ हो गया, इसको ले लेते कॉमन, ठीक है। सो ये 2 से 2 माइनस जे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2e माइनस J10t माइनस जे ई माइनस J10t एंड +2, एक मिनट, -J2 ठीक है, 2e हो गया, यहाँ पर हम लोग माइनस को कॉमन निकाल दिया है ना, यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो माइनस को कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस ही होगा, ये माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया है, तो -2e माइनस 10t, ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जे ई माइनस
एक मिनट, कुछ गलत हो रहा, माइनस प्लस में कहीं पर -2 -2 थोड़ा यहाँ पर चेक करो। माइनस में यहाँ पर 5 5 काट दिया, 2 हाफ हो गया, हाफ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये माइनस, -j होगा। तो माइनस कहाँ पर है देखो, थोड़ा माइनस होगा यहाँ पर, यस सर। ठीक है। और क्या क्या है देखो, +2 EJ10T प्लस JE J10T। तो साइन थीटा कॉस थीटा का ऑयलर फॉर्म में फॉर्मूला सब पता था, ई का फॉर्म में रहता है ना, कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला सब याद आ रहा है, लिखते हैं ना, ई जे थीटा माइनस ई माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, फॉर्मूला था ना, ई माइनस, याद आ रहा है फॉर्मूला सर, साइन थीटा और Yes, कॉस sir. थीटा का। हाँ, तो इसको ऑयलर फॉर्म्स में जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला में मतलब बस लिख देना है 2e माइनस 5t, सो 2, और इसको यदि हम लोग 2 को एक साइड ले लेते हैं तो e माइनस, एक मिनट, 2 नीचे वाला से कैंसिल हो जाएगा, तो EJ10T और EJ10T ई प्लस माइनस, तो ये वाला कॉस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, साइन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस साइन टी, ठीक है। और यदि हम लोग ले लेते हैं ये, तो हाफ हो जाएगा ये, तो मतलब ये 2, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2, तो -2 cos 10t, ये होगा हम लोग का IT। ऑयलर फॉर्म में लिखना होगा साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला, सब फॉर्मूला देखो उसी फॉर्मूला में तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स यदि क्लियर है तो फिर देखो फाइनली हम लोग को एक केवीएल ही यूज हो रहा है। हम लोग यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बस एक केवीएल, हम लोग यूज कर रहे हैं केवीएल, देख सकते हो, हम लोग यूज कर रहे हैं केवीएल बस। और उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स है, पार्शियल फ्रैक्शन, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली बोला जाए तो ये क्या है, 90% मैथमेटिक्स है यहाँ पर, 90% मैथमेटिक्स, 10% खाली एक केवीएल को लगाया है मैंने। देखो ये सब क्लास जो हो रहा था तुम्हारा मैथमेटिक्स भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देख लो एक बार, इसको समझ लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा एकदम अच्छे से, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारा टॉपिक एकदम, हाँ एकदम अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल जितना भी सब बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्लास कर रहे हो उसको समझ में तो आना ही है, डेली जो क्लास कर रहे हो, जो क्लास एब्सेंट कर रहे हो तो उसके लिए तो कुछ भी समझ में नहीं है। अभी तुम लोग का बैच तो पूरा फुल हो गया है, तुम लोग बैच अब पूरा 60 हो जाएगा। A series RLC circuit with R is equal to 3 ohm, L is equal to 1 Henry, a 1 Henry, and C is equal to 0.5 Farad, is excited with a unit step voltage. Obtain an expression for the current using Laplace transform. Assume that the circuit is relaxed initially, okay. So you know the simple RLC series circuit, so you know the KVL, just apply the KVL, okay, then simply taking the Laplace transform, and initially relaxed, matlab initially you know that all values are 0, initial 0 conditions, so I0 Q0, thereafter simply we just separate out the IS, and again just taking the Laplace transform or partial fraction method simply, and then just apply the inverse Laplace transform, then you got the result, okay. So these are the simple steps, similar steps. So I think all of you just try to solve this again.
चलो ट्राई करो फटाफट, 5 मिनट्स समय दिए, ट्राई करो। सो केवीएल अप्लाई किया होगा सबने। सिंपल आरएलसी सर्किट में हम लोग केवीएल का अप्लाई करते थे, क्या होता है, आर आई टी प्लस एल डी आई टी बाई डी टी प्लस 1 बाई सी आई टी डी टी, आई टी डी टी। ओके, और जो हम लोग का यहाँ पर कुछ भी इनपुट जो वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप वोल्टेज, क्लियर, सिंपल यूनिट स्टेप दिए हुए हैं। सो 1 बाई एस होगा सिर्फ यहाँ पर, यूटी, भी नहीं होगा। Now applying the KVL, RIS SLIS minus LI 0 minus plus IS CS plus Q 0 minus SC step 1 by S. Okay, so you know that initially relaxed. So initially relaxed means I0 minus equal to 0, U0 0 minus equal to 0. Okay, so putting all these values simply in this equation, suppose this is equation number 1. So you just got these values are IS plus SL IS, this is 0. Now this is IS by CS, now this is again 0, is equal to 1 by S. Okay, so now what is this IS? Now putting all these values, R is equal to 3. So now this is 3 plus S plus 2 by S is equal to 1 by S. Okay. So again now what is this IS? IS is equal to S. We just take common out S square. SS is cancel out, 3S square like that. So S square plus 3S plus 2. Now this is the factorize, just to factorize this. So what is this? S plus 1 and now this S plus 2. Okay,
So okay, now next you just find out again partial fraction method. Using partial fraction method, just solve this one again. Okay, 1 by s square plus 3s plus 2, that is a by s plus 1 and plus b by s plus 2. Okay, सॉल्व करके बताओ क्या पार्शियल फ्रैक्शन इनवर्स लेकर के बताओ इसको क्या हो रहा है। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेसिक वैल्यू दिख रहा है क्या आ रहा है। ओके, तो क्लियर करो जल्दी से। ममता आंसर आया क्या? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 दिख रहा है ना? आया ना, बोलो। Yes, sir. सो ये आया, देखो इसका इनवर्स ले लो, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो अब तो क्लियर हो रहा होगा, जो भी डेली क्लास जो कर रहा हूं, हमको नहीं लगता कि अब इसमें कोई ऐसा टफ लग रहा होगा। अब तो इतना याद हो गया होगा, मैंने इतना क्वेश्चन करा कि हमको नहीं लगता कि तुम लोग कोई डाउट बचेगा क्या। ये हो जाएगा ई माइनस टी ना होगा एस प्लस 1, ठीक है। और फिर क्या होगा, प्लस माइनस ई माइनस 2t, यही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक नया क्वेश्चन देते हैं। चलो, write down the question. In the series RLC circuit, as shown in figure, there is no initial charge on the capacitor if the switch is closed at t is equal to 0. Determine the resulting current at it. Now circuit is this is 50 volt plus minus. Now this is 2 ohm. This is 1 Henry. Now this is 0.5 farad. So I think this is very clear. Apply KVL. Very simple question. Very simple. Again, very simple. So all of you try to solve this one again. Apply KVL.
So you know this simple KVL equation here again by KVL. This is Ri E plus L dit by dt plus 1 by C 0 to t like that. I t dt is equal to V. Now initial conditions will be 0, taking inverse Laplace, taking Laplace transform, again, taking Laplace transform. So this is RIS plus SLIS, initial condition 0, okay. Now this is IS by CS, this is V by S. Clear? So putting all this value RL, you know the value of RLC here given, R is equal to 2, L is equal to 1, and C is equal to 0.5. So just substitute all these value here. Now again, IS find out, now again taking Laplace transform, then you just find the result. Okay, similar process you. So all of you just try to solve and find the final answer. Okay? Just try to solve and just tell me the final answer. What is the final answer of this question? So okay. So again, you all of you join again. Time is over. Join again. Just take a screenshot of this. Take a screenshot of this and join again. So हम लोग का कहाँ तक था? हम लोग का ये इक्वेशन जो है कि RIS और क्या था प्लस SLIS प्लस IS by CS is equal to V by S. Now putting the values, known values or known values to IS plus F, IS plus 2, IS is equal to 50 by S. Okay. So now again just simplify this one. IS is equal to, so 50 by क्या आ जाएगा S square plus 2S plus S. क्लियर? इसको अब हम लोग जो है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, या तो फिर अच्छा क्या 2S plus S है कि 1 होगा, देखो तो 2S प्लस एक यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए देखो तो 2 होगा ना, 2 होगा, 2 हाँ 2 होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 50 क्या हो जाएगा तुम्हारा s प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे तुम लोग इसको अपने से कैसे तोड़ सकते हैं, s स्क्वायर 2s प्लस 2 निकालो, इसको कैसे निकालना है। s प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 ये हो सकता है, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, देखो तो होगा ना, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 बाई s प्लस 1 प्लस j s प्लस 1 माइनस j, बस हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो यहाँ पर, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंशन करेंगे इसको हम लोग, तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सपेंशन करो, क्या हो रहा है देखो इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। कोशिश करो बनाने का, अब बना सकते हो, मैंने बहुत सारा इतना सारा क्वेश्चंस करा दिया, बहुत करा दिया, ठीक है। अब तुम लोग को काम है कि इसको फाइनल आंसर, जब मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ इसको चेक करने का कि फाइनल आंसर सही में इतना हम लोग ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेस सारा मेथड मैंने बता दिया हूँ। देखो ये होगा फाइनल माइनस टी साइन टी, ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आप लोग जो है कि फाइनल आंसर लाने का कोशिश करो, मैंने सारा मेथड सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गैप कर दिया हूँ,
ये तुम लोग फील करो यहाँ पर कैसे कैसे इसको तोड़ करके ये फाइनल हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे हम लोग आएगा, देखो कोशिश करो। नेटवर्क का सेपरेट कॉपी बना करके सारे क्वेश्चंस को रखो, ये सब तुम लोग कंपटीशंस में भी काम देगा। एक बार रिवाइज करने से ही सारा सारा चीज सॉल्व हो जाए। तो देखो इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेना, और उसके बाद जो है कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, और एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो इसको भी देख लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो, और उसको तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, तुम तो कॉपी में लिखे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। सो ये क्वेश्चन है द सीरीज RL circuit shown in figure is excited by a DC voltage of 50 volt. Assume the initial current flowing through the inductor to be 5 ampere, and find the current IT for t is greater than 0. Use Laplace transform method. ठीक है, फिगर तो सिंपल सर्किट जो बनाते हैं वही है। ठीक है, सो यहां तक जो है कि तुम लोग को करना है। ठीक है, कर लो इसको अच्छे से। सो हम लोग का कहां तक था, हम लोग का ये इक्वेशन जो है कि RIS और क्या था प्लस SLIS प्लस IS by CS is equal to V by S. Now putting the values, the value known values or you known values, 2 IS plus F IS plus 2 IS is equal to 50 by S. Okay, so now again just simplify this one. IS is equal to, so 50 by क्या आ जाएगा S square plus 2S plus S. क्लियर, इसको अब हम लोग जो है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, या तो फिर या अच्छा क्या 2S प्लस S है कि 1 होगा, देखो तो 2S प्लस एक यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए देखो तो 2 होगा ना, 2 होगा, 2 हाँ 2 होगा। ठीक है, सो इसको हम लोग यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 50 क्या हो जाएगा तुम्हारा S प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म A प्लस B का होल स्क्वायर। ऐसे तुम लोग इसको अपने से कैसे तोड़ सकते हैं, S स्क्वायर 2S प्लस 2 निकालो, इसको कैसे निकालना है। S प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 ये हो सकता है, S प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, देखो तो होगा ना, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 बाई S प्लस 1 प्लस J S प्लस 1 माइनस J, बस हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो यहाँ पर, बाय पार्शियल फ्रैक्शन
सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंशन करेंगे इसको हम लोग। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सपेंशन करो, क्या हो रहा है देखो इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, कोशिश करो बनाने का। अब बना सकते हो, मैंने बहुत सारा इतना सारा क्वेश्चंस करा दिया, बहुत करा दिया। ठीक है, अब तुम लोग को काम है कि इसको फाइनल आंसर, जो मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ इसको चेक करने का कि फाइनल आंसर सही में इतना हम लोग ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सारा प्रोसेस सारा मेथड मैंने बता दिया हूँ। देखो ये होगा फाइनल, -t sin t। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आप लोग जो है कि फाइनल आंसर लाने का कोशिश करो। मैंने सारा मेथड सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गैप कर दिया हूँ, ये तुम लोग फील करो यहाँ पर कैसे कैसे इसको तोड़ करके ये फाइनल हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे हम लोग का आएगा, देखो कोशिश करो। नेटवर्क का सेपरेट कॉपी बना करके सारे क्वेश्चंस को रखो, ये सब तुम लोग कंपटीशंस में भी काम देगा। एक बार रिवाइज करने से ही सारा सारा चीज सॉल्व हो जाए। तो देखो इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेना, और उसके बाद जो है कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, और एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो इसको भी देख लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो, और उसको तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, तुम तो कॉपी में लिखे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। सो ये क्वेश्चन है द सीरीज RL circuit shown in figure is excited by a DC voltage of 50 volt. Assume the initial current flowing through the inductor to be 5 ampere, and find the current IT for t is greater than 0. Use Laplace transform method. ठीक है, फिगर तो सिंपल सर्किट जो बनाते हैं वही है। ठीक है, सो यहां तक जो है कि तुम लोग को करना है। ठीक है, कर लो इसको अच्छे से।